Hi everyone, so today we are going to do part number 3 of the chapter The Age of Industrialization, in which we are going to study industrialization in the colonies. हमें पता है कि एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज होने लग गया था, तो आज हम उन कॉलोनीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेनली हम इसमें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, let us now move to India to see how colony industrialized. Once again, we will look not only at factory industries but also at the non-mechanized sector. We will limit our discussion primarily to textile industries. अब कॉलोनीज की बात करें तो इंडिया आता है। इंडिया पे में हम सिर्फ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर भी पढ़ेंगे। बट जो हमारी प्राइमरी डिस्कशन होगी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे रहेगी। अब एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क्स एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया dominated the international market. In textile, coarser cottons were produced in many countries, but finer variation often came from India. Armenian Persian merchants took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and Central Asia. अब अगर हम बात करें मशीन इंडस्ट्री से पहले, तो जो सिल्क के कॉटन गुड्स हैं इंडिया से वो डोमिनेट कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट टेक्सटाइल्स में। जो कोर्सर कॉटन थी वो तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बन रही थी, जो फाइनर वैरायटी है वो सिर्फ इंडिया में बन रही थी। इसीलिए जो अर्मेनिया और पर्शियन के मर्चेंट्स हैं वो गुड्स लेते थे पंजाब से, फिर अफ़गानिस्तान जाते, फिर ईस्टर्न पर्शिया, फिर सेंट्रल एशिया। Bales of fine textile were carried on the camelback by the northwest frontiers, through mountain passes and across deserts. Vibrant sea trade operated through the main pre-colonial port. Surat on the Gujarat coast connected India to Gulf and Red Sea ports. Masulipatam on the Coromandel coast and Hooghly in Bengal had trade links with Southeastern Asian ports. अब आपकी बेल्स को फाइन टेक्सटाइल की भी लिया जाता था कैमल के ऊपर, एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जाता था, फिर माउंटेन पासेस और डेजर्ट से जाता था। जो वाइब्रेंट सी ट्रेड थी वो प्री कॉलोनियल पोर्ट से जाती थी। सूरत होगा गुजरात कोस्ट पे, वो इंडिया को कनेक्ट करता था गल्फ और रेड सी पोर्ट्स तक। और जो मसूलीपट्टनम है कोरोमंडल कोस्ट पे, एंड जो हुगली एंड बंगाल, वो है ट्रेड लिंक with Southeast and Asian ports. A variety of Indian merchants and bankers were involved in the network of export trade, financing production, carrying goods and supplying exporters. Supply merchants linked the port towns to inland regions. They gave advances to the weavers, procured the woven cloth from weaving villages and carried the supply to the ports. At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and bought goods from the supply merchants operating inland. अब जो हमारे इंडियन मर्चेंट थे और बैंकर थे वो इन्वॉल्व थे नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड में। फाइनेंस करते थे प्रोडक्शन को, गुड्स को कैरी करते थे और सप्लाई करते थे एक्सपोर्टर्स को। जो सप्लाई मर्चेंट थे वो लिंक थे पोर्ट टाउन से इनलैंड रीजन था। एडवांस दे देते वीवर को और वोवन क्लॉथ फ्रॉम वीविंग विलेजेस को लेते थे, फिर वो सप्लाई को पोर्ट्स तक लेके जाते थे। पोर्ट्स पे जो बिग शिपर हैं या फिर एक्सपोर्ट मर्चेंट है उनके पास ब्रोकर्स होते थे जो नेगोशिएट करते थे प्राइस को और बॉट करते थे गुड्स फ्रॉम सप्लाई मर्चेंट जो कि ऑपरेट करते थे लैंड्स को। By 1750s, the network controlled by Indian merchant was breaking down. अब जो ये नेटवर्क हमने इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा पढ़ा ये टूट रहा था 1750s में। The European companies gradually gained power, first securing a variety of concessions from local court, the monopoly rights to trade. This resulted in the declines of old ports of Surat and Hooghly, through which local merchants had operated. Exports from these ports fell dramatically. The credit that financed that earlier trade began drying up, and the local bankers slowly went bankrupt. In the last year of the 17th century, the gross value of trade that passed through Surat has been 16 million. By 1740s, it slumped to 3 million.
अब जो आपकी यूरोपियन कंपनीज थी उनके पास पावर आने लग गई, तो उन्होंने कंसेशन ले ली लोकल कोर्ट से और उनको मोनोपोली राइट मिल गया ट्रेड करने का। इसकी वजह से जो ओल्ड पोर्ट है सूरत और हुगली के, वो तो क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लगे, जिनको हमारे लोकल मर्चेंट चलाते थे। जो हमारे पोर्ट से एक्सपोर्ट होता था वो तो फेल हो गया, तो जो क्रेडिट है वो फाइनेंस किया जाता था ट्रेड को, वो ड्राई होने लग गए और जो लोकल बैंकर्स थे वो बैंकरप्ट हो गए। लास्ट ईयर 17वीं सेंचुरी में जो ग्रॉस वैल्यू है ट्रेड की वो 16 मिलियन थी, बट 1740s में जाते जाते वो क्या होगी, 3 मिलियन ही रह गई। अभी इंग्लिश फैक्ट्री है सूरत पे, 17वीं सेंचुरी की ड्राइंग है। इंग्लिश फैक्ट्री सूरत पे 17वीं सेंचुरी ड्राइंग। वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू, जब से हमारे सूरत और हुगली हमारे ख़त्म हो रहे थे, बंद कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने, बॉम्बे और कलकत्ता ग्रो होने लग गया। दिस शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट्स टू न्यू वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। जब हमारे ओल्ड पोर्ट से नए पोर्ट्स तक कोई भी चीज़ शिफ्ट होती है तो वो इंडिकेटर है कि कॉलोनियल पावर की ग्रोथ हो रही है। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन पावर्स एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप्स। जो आपकी ट्रेड है नए पोर्ट्स पे वो कंट्रोल की जाती थी यूरोपियन कंपनीज के द्वारा, एंड उनको कैरी किया जाता है यूरोपियन शिप्स में। While many of the old trading houses collapsed, those that wanted to survive had now to operate within a network shaped by European trading companies. ओल्ड जो हमारे ट्रेडिंग हाउसेस थे वो तो collapse हो गए थे, पर जिनको अभी भी सर्वाइव करना था वो इस नेटवर्क में थे जो कि यूरोपियन ट्रेडिंग गवर्नमेंट कंपनीज में बनाया था। हाउ डज चेंजेस इफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड अदर आर्टिशंस। अभी हमारी आर्टिशंस की लाइफ कैसे चेंज करता है। जो कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर 1960 did not necessarily lead to decline in textile exports from India. British cotton industry has not yet expanded and the Indian fine textiles were in great demand in Europe, so the company was keen in expanding textile exports from India. अब पहले जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा नहीं है 1760 में ही आके उन्होंने टेक्सटाइल्स जो एक्सपोर्ट है इंडिया से उनको डिक्लाइन कर दिया, नहीं। जो ब्रिटिश थे उनको भी पता था कि हमारे फाइन टेक्सटाइल्स होते हैं जिनकी डिमांड है यूरोप में, तो वो हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स को क्या करना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे। बिफोर एस्टैब्लिशिंग पोलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक इन 1760s and 1770s, the East India Company has found it difficult to ensure a regular supplies of goods and exports. जब पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करी बंगाल और कर्नाटका में, उससे पहले 1760s और 70s में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने फाउंड कर लिया कि बहुत डिफ़िकल्ट है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट के लिए। और एक वीवर दिखाया गया वर्क पे एट गुजरात। द फ्रेंच, डच, Portuguese as well as the local traders competed in the market to secure woven cloth. डच हो गए, आपके फ्रेंच हो गए, लोकल ट्रेडर्स हो गए, वो compete कर रहे थे मार्केट कि वो सिक्योर कर सके woven cloth. So the weavers and the supply merchants could bargain and try selling produce to the best buyer. In their letters back to London, companies officials continued to complain of the difficulties of supply and high prices. अब जब के वीवर्स और सप्लाई मर्चेंट है वो बार्गेन कर रहे थे और सेल चाहते थे कि हम उनका प्रोड्यूस किया गया भी सेल हो बेस्ट बायर को। ये जो लेटर है बैक टू लंदन गया और जो कंपनीज ऑफिशियल है उन्होंने कंप्लेन किया कि डिफ़िकल्ट है सप्लाई करने के लिए एंड द हाई प्राइसेस की वजह से। However, once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade. It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition and control costs and ensure regular supplies of cotton and silk goods. This it did through a series of steps. जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी उसने इस्टेब्लिश की पॉलिटिकल पावर
जिसकी वजह से इसको मोनोपोली राइट मिल गया ट्रेड करने का। तो उसने प्रोसीड किया और डेवलप किया एक सिस्टम जिसकी वजह से वो मैनेज और कंट्रोल कर पाए, जिसकी वजह से वो कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकते थे। जो कंट्रोल कॉस्ट थी इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। ये उन्होंने किया एक कई स्टेप्स में। तो पहला स्टेप्स था कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड एंड एस्टेब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। It appointed a paid servant called Gumasta to supervise weavers, collect supplies and examine quality. तो कंपनी चाहती थी कि जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेडर है और ब्रोकर है कनेक्टेड विद क्लोथ ट्रेड, उसको हम एलिमिनेट कर दें और इस्टेब्लिश कर दें डायरेक्ट कंट्रोल वीवर्स के साथ। इनकी वजह से उन्होंने एक पेड सर्वेंट लगा दिया वहाँ पे, जो कि गुमास्ता कहलाता था, जो कि वीवर्स को सुपरवाइज करता, सप्लाई कलेक्ट करता था और एग्जामिन करता था क्वालिटी ऑफ क्लोथ। सेकेंड, दैट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद द अदर बायर्स। वन वे ऑफ डूइंग दिस थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांटेज। Once the order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production. Those who took loans had hand over to cloth they produced to gumastas. They could not take it to any other trader. अब जो कंपनी है कंपनी के वीवर्स हैं, वो दूसरे बायर्स के साथ डील करने से कंपनी ने रोक दिया। इसको करने के लिए वो उनको एडवांस दे देते, जो कि उनको बाइंड कर देता कंपनी के साथ। उनको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन की तरह था ये। जो भी लोन ले लेता था उसको हैंड ओवर करना पड़ता था क्लॉथ गुमास्ता को, और वो किसी भी अदर ट्रेडर के पास वो क्लॉथ नहीं लेके जा सकता। द लोन्स फ्लोड इन एंड द डिमांड ऑफ फाइनर टेक्सटाइल एक्सपेंडेड। वीवर्स eagerly took the advances hoping to earn more। अब लोन्स फ्लो हो गए और जो डिमांड है फाइन टेक्सटाइल की वो एक्सपैंड कर गई। वीवर्स ने जल्दी जल्दी से एडवांसेस ले ली, और उन्होंने क्यों लिए? क्योंकि उनको लगता था इसकी वजह से हम ज़्यादा कमा पाएंगे। Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with weaving and produced from this took care of their family needs। अब जो काफ़ी सारे वीवर्स, उनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं लैंड के, जिनकी वजह से वो कल्टीवेशन कर देते हैं वीविंग के साथ और प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो अपनी फैमिली नीड्स की केयर कर सकें। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू वीविंग। अब उनको अपनी लैंड छोड़नी पड़ी और सारा टाइम वीविंग को देना पड़ेगा। वीविंग थी उसको लेबर चाहिए था, एंटायर फैमिली का, चिल्ड्रन होगी, वुमेन थी, वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ये प्रोसेस के साथ रिलेटेड थी। Soon in many villages there were reports of clashes between weavers and gumastas। काफ़ी सारे हमारे विलेजेस जहाँ पे वीविंग होती थी वहाँ पे क्या होने लगी? क्लैशेस होने लग गए वीवर्स और गुमास्ता के बीच में। Earlier supply merchants had very often lived within the weaving villages and had a close relationship with weaver, looking after their needs and helping them in the time of crisis। The gumastas were outsiders with no long-term social links with the village। पहले जो आपके मर्चेंट्स रहते थे वो लोगों को जानते थे, उनके कोई लिंक्स थे, रिलेशनशिप्स थे। बट जो नए गुमास्तास आए वो आउटसाइडर हैं, उनके कोई भी सोशल लिंक्स नहीं है। They acted arrogantly, marched into the villages with sepoy and peons, and punished weavers for delays in supplies, often beating and flogging them. The weaver lost space to bargain for prices and sell to different buyers. The prices they received from the company was miserably low, and the loans they accepted tied them to the company। अब वो क्या थे? बहुत ही एरोगेंट थे गुमास्तास, और वो सिपॉयस के साथ आते थे। सिपॉय क्या होता है? अब सिपॉय एक ब्रिटिश प्रोनाउंड वर्ड है, सिपाही।
सिपाही का ब्रिटिश प्रोनाउंड वर्ड है जो कि एक इंडियन सोल्जर होता है जो कि सर्विस में होता है ब्रिटिश के। आर वी क्लियर विद इट? नाउ सिपाही के आते थे, अगर कोई भी डिले हो जाता है सप्लाई में तो वो बहुत उनको पीटते मारते थे वीवर्स को। तो वीवर ने अपनी जो स्पेस है बार्गेन करने की प्राइजेस और सेल करने की डिफरेंट बायर को, वो तो खो दिया। और जो प्राइजेस रिसीव किए गए थे उनके द्वारा कंपनी से वो बहुत ही कम थे और वो इसीलिए कंपनी के साथ टाइड रहे क्योंकि उन्होंने लोन एक्सेप्ट किए हुए थे। In many places in Karnataka and Bengal, weavers described villages and migrated, setting up looms in other villages where they had some family relations. Elsewhere, weavers, along with the village traders, revolted, opposing the company and its officials. Over time, many weavers began refusing loans, closing down their workshops, and taking to agriculture labor. कर्नाटक और बंगाल में क्या हुआ, वीवर्स ने डिसर्ट कर दिए विलेजेस और माइग्रेट कर गए। उन्होंने लूम सेट कर लिए दूसरे विलेजेस में जहाँ उनके फैमिली रिलेशंस थे। जो वीवर्स थे विलेज ट्रेडर के साथ मिलकर उन्होंने रिवोल्ट किया जिसमें उन्होंने कंपनी को अपोज किया और उनके ऑफिशियल को अपोज किया। जो टाइम निकलता गया और जो वीवर्स थे वो लोन्स रिफ्यूज़ करने लग गए और अपनी वर्कशॉप बंद कर एग्रीकल्चर लेबर में आ गए। By the turn of 19th century, cotton weavers faced a new set of problems. अब 19th century में cotton weavers थे, उनको क्या आगे नई set of problems देखने को मिली। Manchester comes to India. In 1772, Henry Petullo, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textiles could never reduce, since no other nation produced goods of the same quality. Yet by the beginning of the 19th century, we see the beginning of the long decline of textile exports from India. In 1811-12, piece goods accounted for 33% of India's exports. By 1850-51, there was no more than 3%. अब 1772 में एक हेनरी पटेलो नाम का बंदा कहता कि इंडिया के टेक्सटाइल कभी भी कम नहीं हो सकती, उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी और नेशन ऐसे गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो कि सेम क्वालिटी के हो। बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एक लॉन्ग डिक्लाइन आ गया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इंडिया से और 1811-12 में क्या हुआ, पीस गुड्स थे उन्होंने 33% ऑफ इंडिया से एक्सपोर्ट्स को काउंट किया और 1850 से 51 तक कोई भी 3% से ज़्यादा नहीं था। Where did this happen? What were its implications? Cotton industries developed in England. Industrial groups began worrying about imports from other countries. They pressurized the government to impose import duties on cotton textiles so the Manchester could sell in Britain without facing any competition from outside. जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो इंग्लैंड में डेवलप हो गई थी और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने क्या किया, वरी हो गए क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इम्पोर्ट्स आ रहे थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाओ और सो दैट कि जो मैनचेस्टर गुड्स हैं वो ब्रिटेन में बिक पाएँ कोई भी कंपटीशन आउटसाइड के बिना। At the same time, industries persuaded the East India Company to sell British manufactured in Indian market as well. Exports of British cotton goods increased dramatically in early 19th century. At the end of the 18th century, there had been virtually no impact of cotton piece goods into India, but by 1850, cotton piece goods constituted over 31% of the whole value of Indian exports, and by the 1870s, the figure was over 50%. जो इंडस्ट्रियल्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मार्केट में भी सेल करने लगे। जो ब्रिटिश कॉटन एक्सपोर्ट थे वो इंक्रीज कर गए ड्रामेटिकली अर्ली 19th सेंचुरी में। जब एंड हुआ 18th सेंचुरी का, वर्चुअली कोई भी नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडिया। बट 1815 में जो कॉटन पीस गुड्स हैं को कॉन्स्टिट्यूट करे थे 31% ऑफ वैल्यू ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स,
और 1870s में वो 50% तक चला गया। जो कॉटन वीवर्स थे इंडिया में, उन्होंने को 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी थी एट सेम टाइम। जो इनका एक्सपोर्ट मार्केट था वो क्लैप्स कर गया और जो लोकल मार्केट है वो श्रैंक हो गया। वो ग्लटेड हो गए विद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स और प्रोड्यूस बाय मशीन्स एट लोअर कॉस्ट। जो इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स वर सो चीप क्यों दैट जो हमारे वीवर्स हैं वो ईजिली कम्पीट नहीं कर सकते थे उनके साथ। 1850s में जो रिपोर्ट्स हैं मोस्ट वीविंग रीजन्स ऑफ इंडिया से, उन्होंने रेट किया जो स्टोरीज एंड डिक्लाइन एंड डिसोल्यूशन के। 1860 में जो हमारे वीवर्स उनको नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कोई भी उनको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन नहीं मिल रहा पा रहा था अच्छी क्वालिटी का। व्हेन द अमेरिकन Civil War broke out and the cotton supplies from US were cut off, Britain turned to India. As raw cotton exports from India increased, the price of new cotton shot up. Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices in situation weaving could not pay. अब अमेरिका में सिविल वॉर लग गई तो यूएस से जो भी कॉटन सप्लाईज आ रही थी वो तो कट हो गई, तो ब्रिटेन मुड़ गया इंडिया की तरफ। यहाँ पे जो कॉटन एक्सपोर्ट होने लगे तो हमारा जो प्राइस है क्रॉ कॉटन का वो बहुत बढ़ गया। और जो वीवर्स थे इंडिया में उनको सप्लाईज तो खरीदनी थी, तो उनको रॉ कॉटन बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस पे खरीदनी पड़ी। इनकी वजह से जो वीविंग है अब वो उनके खर्च नहीं चला पा रही थी। Then by the end of the 19th century, weavers and other craftsmen yet another problem. Factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industries possibly survive? अब 19th century के एंड में को नई प्रॉब्लम आ गई वीवर्स और अदर क्राफ्ट पर्सन के आगे कि हमारी फैक्ट्रीज इन इंडिया ने प्रोडक्शन शुरू कर दी, जिसकी वजह से मशीन गुड्स से मार्केट फ्लड हुआ पड़ा है। अब वीविंग इंडस्ट्री इसमें से कैसे सर्वाइव करे? अभी देखो यहाँ पर डायग्राम, सॉरी पिक्चर। इसमें क्या है, बॉम्बे हार्बर दिखाया गया लेट 18th सेंचुरी ड्राइंग है। जो बॉम्बे एंड कलकत्ता है वो ग्रोइंग ट्रेडिंग पोर्ट्स से फ्रॉम 1780s, और उनके मार्क कर दिया डिक्लाइन ऑफ ओल्ड ट्रेडिंग पोर्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। एंड इसके साथ आपका थर्ड पार्ट भी होता है खत्म। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम 4th पार्ट डिस्कस करेंगे।